Good morning, students. Today, I will explain you what is digestion and how food gets digested inside our body. So, the food that we eat are complex substances and they need to be broken down for the functioning of our body. But how did they broke down? Or how do they broke down? And what are the process and which organs are involved in the digestion of the food that we take or intake we consume. So जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, जो भी फूड हम इनटेक करते हैं, वो फूड क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से बने होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ओके। ऐसे कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक फूड में, जो भी आप खाते हो उसमें प्रेजेंट होते हैं। सो जो भी आप फूड खा रहे हो या जो भी हम फूड खाते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। एंड वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जब सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन होते हैं, टूटते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, ओके। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट होती है एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं तो जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ फूड, दे गेट एसिमिलेटेड बाय द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? उसे एसिमिलेट करते हैं, मतलब उसे ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद वो ब्लड से जो भी न्यूट्रिएंट्स उस फूड में प्रेजेंट होती हैं वो मिक्स हो जाती हैं। एंड यू नो दैट ब्लड फ्लो इनसाइड आवर बॉडी, ब्लड हमारे पूरे हर एक बॉडी पार्ट्स में फ्लो कर रहे हैं, ओके, फ्रॉम टो टू आवर ब्रेन। सो ये जो ब्लड है उन न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक लेकर जाते हैं और हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन्स तक ये एनर्जी प्रोवाइड हमें करते हैं। सो दैट हैपेंस ओनली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये तब होता है जब डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। So, are you totally clear of the process of digestion? That what is digestion? So, you must say that digestion is the process by which food or the complex food gets broken down into simpler substances, and this process is called as digestion. Understood? And after the digestion, the nutrients present in a food get assimilated by the blood vessels and they get mixed with the blood, and when blood flows from inside our body, the nutrient present in the blood reach out to the every cell, and that's how the digestion works. Okay, now in the process of digestion के process में बहुत सारे organs involved होते हैं, okay, so there are many organs which are involved in the process of digestion, or I can say they help in the process of digestion, okay. सो कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, without them digestion is not possible, digestion of food is not possible. Like the first body part or the first organ that we are going to discuss is mouth. So mouth is the first organ which is involved or which help us in the digestion process. So the digestion of the food starts from the mouth, okay. Now it is very I know that you are very amazed that how is it possible. No, it is possible and it is a fact that the digestion of the food starts from the mouth. जो फूड की डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे, हाउ। सो in our mouth there is a gland present which is known as salivary gland. जब भी आप like even now you can feel a sticky watery substance inside your mouth. आप अपनी माउथ के अंदर एक watery sticky substance क्या कर पा रहे हो? फील कर पा रहे हो, and that is what is your saliva, okay. And salivary gland से
सलाइवा सिक्रीट होती हैं और उस सलाइवा में एक तरह की एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज सलाइवरी अमाइलेस. ओके, दैट इज सलाइवरी अमाइलेस, salivary amylase. Okay, so inside our mouth there is a gland present which is known as salivary gland, and this gland secretes saliva in which salivary amylase or the enzyme which is called as salivary amylase is present. Okay, हमारे माउथ के अंदर एक ग्लैंड होती है और उस ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट करती, वो ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती है और उस सलाइवा में एक तरह की एंजाइम होती है जो जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेस. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेस? दे ब्रेक्स or they break down the carbohydrates. Okay, they breaks down the complex carbohydrate into starch. ओके, सो ये कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. ओके, एंड ऑल्सो दे हेल्प अस और दे हेल्प्स टू मिक्स द फूड वेल एंड इट मेक्स द food soft and tender and it is very easy to digest. Okay, so salivary gland से जो सलाइवा सिक्रीट होती हैं वो फूड को मिक्स करने में, उसे सॉफ्ट बनाने में और वो इजीली डाइजेस्ट करने में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करते हैं. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम इज व्हाट? इट इज द सेट ऑफ ऑर्गन्स और इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन प्रोसेस. डाइजेशन प्रोसेस में जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं उन्हें साथ में या टुगेदरली दे आर नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, सो जो फूड की डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, and inside our mouth there is a gland which is known as salivary gland, and salivary gland secretes saliva in which salivary amylase is present, and this enzyme breaks down the carbohydrates into starch. Okay, now and also it is it also makes our food very soft and easy to digest. Now the next thing that we are going to read, the next organ which is involved in the digestion process is food pipe. Okay, and its function is very much clear that this food pipe has also, it has other name called as, it is also called as oesophagus. Okay, oesophagus, it is a food pipe. So it helps in the transportation of food, chewed food from mouth to stomach. Okay, ये जो ओएसोफेगस होती हैं वो माउथ से अटैच होती हैं और स्टमक से अटैच्ड होती हैं. सो ये जो फूड है माउथ से स्टमक तक जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है या फिर माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम ये फूड पाइप ही करती है. ओके, फूड को माउथ से लेकर स्टमक तक कौन लेकर जाते हैं? इट does, it is the function of oesophagus or you can say food pipe. थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ओके, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब ये जो ओएसोफेगस होती है ना, ये एक पाइप की तरह होती है, बट ये पाइप जो होती है, ये जो फूड पाइप होती है, ये मस्कुलर फूड पाइप होती है और जैसे ये फूड इस फूड पाइप से ट्रांसपोर्ट होते हैं ये क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. जैसे अगर ये फूड यहाँ पर है तो ये क्या करती है, एक्सपैंड करती हैं. ओके, अब ये फूड थोड़ी नीचे गए तो फिर ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ये जो मसल है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये फूड क्या माउथ से लेकर स्टमक तक पहुँचती हैं. एंड व्हेन फूड रीचेस इन द स्टमक, या स्टमक में क्या बहुत सारे डिफरेंट गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं. स्टमक जो होते हैं अलग अलग गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं जो क्या करते हैं, फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं. नाउ विल रीड अबाउट टू ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज. सो लिवर हैज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस. लिवर क्या करते हैं, ये बाइल जूस सिक्रीट करते हैं और ये बाइल जूस क्या करते हैं, जो भी फूड में या जो भी फूड में प्रेजेंट
न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय अ ग्लैंड विच इज नोन एज लिवर. एंड जो भी लिवर बाइल जूस सिक्रीट करती हैं वो एक ब्लैडर में मतलब एक बॉडी पार्ट में या एक ऑर्गन में वो क्या रहती है, स्टोर्ड रहती हैं, एंड दैट इज नोन एज गॉल ब्लैडर. ओके, गॉल ब्लैडर इज द प्लेस वेयर द बाइल जूस इज स्टोर्ड फॉर the future or for whenever it needs. Okay, so bile juice liver क्या करती है, एक तरह की जूस सिक्रीट करती है, that is known as bile juice. और ये bile juice stored होती है कहाँ पर, gall bladder में. And again, what is the function of bile juice? It help us in the in breaking down the फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. जो च्यूड फूड होती है उन्हें, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द पैनक्रियाज. सो पैनक्रियाज इज व्हाट, पैनक्रियाज इज अदर ग्लैंड. ओके, नाउ पैनक्रियाज क्या करते हैं, नाउ what does pancreas do? It also secretes a juice. Okay, ये भी एक तरह की juices secrete करते हैं, and that juice is what? That juice is pepsin, trypsin, and pancreatic juice. ये क्या करते हैं, फूड में ये तीन juices क्या करते हैं, मिक्स करके इसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. Okay, so with the help of the gastric juices, bile juice, pepsin, trypsin and the pancreatic juice, the food gets digested. Okay, the food gets digested, not completely. अब देखिए यहाँ पर स्टमक में आते आते यहाँ पर स्टमक से जो भी गैस्ट्रिक जूसेस निकल रहे हैं या फिर पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकल रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं, या फिर लिवर से जो भी बाइल जूस सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, इन सभी से जो फूड है वो क्या सिंपलर सब्सटेंसेस में बहुत हद तक वो क्या होते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं. एंड लेट मी टेल यू, जो भी फूड हम इंटेक करते हैं, द फूड दैट वी ईट रिमेन्स इन स्टमक फॉर 4 आवर्स. ठीक है, ये स्टमक में 4 आवर्स तक रहते हैं और उसी 4 आवर्स में ये क्या होते हैं, जो भी जूसेस हैं वो अपना फंक्शन या फिर वो एक्ट करते हैं और उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं. नाउ आफ्टर पैनक्रियाज, आफ्टर स्टमक, इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब देखिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बट ये मतलब इनकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है. ओके, 6 मीटर इट इज द लेंथ ऑफ अ 2-story बिल्डिंग. ओके, और ये इतने ज़्यादा कॉइल्ड होते हैं, it is the coiled part or it is the coiled organ in the digestive system, and due to this coiled structure here the food get digested completely. जो फूड की डाइजेशन है वो क्या completely small intestine में हो जाती है. Okay, so small intestine is what? Small intestine is a coiled structure. Okay, it is a coiled muscular structure जहाँ पर फूड की डाइजेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है. एंड इसी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं. अब देखिए जब यहाँ पर जब कंप्लीट डाइजेशन हो चुके होते हैं तो जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स होते हैं, इन ब्लड वेसल्स से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं. आफ्टर डाइजेशन जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं इन ब्लड वेसल. एंड मैंने आपको बताया है फ्रॉम ब्लड वेसल दे गेट मिक्स्ड विद द ब्लड, एंड व्हेन द ब्लड फ्लोज इनसाइड आवर बॉडी दे रीच टू एवरी सेल. ओके, हर एक सेल्स तक वो पहुंचते हैं. नाउ आफ्टर द फूड इज गेटिंग डाइजेस्टेड कंप्लीटली, सो कुछ वेस्ट मटेरियल भी बच जाते हैं. द लेफ्ट आउट वेस्ट मटेरियल आफ्टर द डाइजेशन प्रोसेस इट गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब ये लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, ये रेक्टम से होते हुए एनस से होकर हमारे बॉडी से क्या होते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, और वी कैन से इट रिमूव्स, इट गेट्स रिमूव्ड डाउन फ्रॉम द body. Okay, so that's how the digestion process is, or that's how our digestive system works. Okay, so you have to remember the functions of each and every organ involved in the digestive
सिस्टम और डाइजेशन प्रोसेस। ओके, डाइजेशन प्रोसेस में आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। सो जस्ट टू सम अप दिस, आई वांट यू टू नो कि जो भी फूड हम इनटेक करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं और उनका सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं तब जाकर ही वो हमें क्या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और फूड की जो डाइजेशन है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। एंड देयर इज अ ग्लैंड विच इज नोन एज सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। और उस सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं। और उस सलाइवा में एक तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करते हैं, फूड को मिक्स करते हैं, फूड को सॉफ्ट बनाते हैं और ये डाइजेस्ट करने में हेल्प भी करते हैं। और अच्छे से फूड को क्या करते हैं, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रोक करते हैं और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। विद द माउथ इट गोज टू द ओएसोफेगस और ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। ये क्या करते हैं, थ्रू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन फैलते हैं, सिकुड़ते हैं। इस तरह से फूड क्या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू वो स्टमक तक पहुंचते हैं। और स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं एंड अलंग विथ लिवर एंड पैनक्रियाज, इनसे जो भी जूसेस सिक्रीट होते हैं, लाइक मैंने बताया लिवर से बाइल जूस सिक्रीट होते हैं। और बाइल जूस जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं, देयर इज अ प्लेस और देयर इज अ ऑर्गन विच इज नोन एज गॉल ब्लैडर। ओके, सो पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, इन सभी से फूड जो होते हैं वो क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, नॉट कम्प्लीटली। जो कंप्लीट डाइजेशन होती है वो कहाँ होती है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज ऑफ दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो कंप्लीट डाइजेशन है वो हो जाते हैं और यहाँ पर जो अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स के ब्लड में मिक्स हो जाने के बाद जितने भी सेल्स हैं वहाँ तक जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुँचते हैं। एंड जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो इस लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। So that is what the digestion is. Okay, I hope you understood this, and still if you have any doubt you can ask me.